ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑलरेडी लेट हो गया सारा सेशन, सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई वेलकम एवरीबडी, सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे यूथ विंग के चेयरमैन आए हैं चेतन जी, जीतो के मेंबर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एपेक्स कोर कमेटी मैट्रिमोनी के हमारे मेंबर मेघना जी मुनोत, एपेक्स कोर कमेटी इंटरनेशनल विंग के गौतम जी मुनोत, बाकी अजय अजय सर, सीए अजय मुथा जी, जवाहर सर, सबको मैं वेलकम करता हूँ। एंड इवन कंप्यूटर एसोसिएशन यहाँ पे आया है, एडीसीए, सो उनके लिए आई गेस ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो कुछ उनके भी क्वेरीज रहेगी, क्वेश्चन रहेगी। सो आई हैंड ओवर द माइक टू अजय सर टू इंट्रोड्यूस आवर टुडे स्पीकर। Good evening. It's my distinct honor to introduce today's very learned and highly educated speaker, Dr. Snehal Hemant Kumar Vakila, who is born in 1981 in Surat, Gujarat. He has been a trailblazer in the field of cyber law, cyber security, and cybercrime investigation over last 28 years. Dr. Snehal sir's academic journey started from Surat. He completed his schooling, BCom, LLB from Surat. And after that, his quest for knowledge led him to specialize cyber laws, cybercrime investigation at the prestigious Asian School of Cyber Laws, Pune. Subhash Chandra Bose in 2022. Then, in 2022 only, he was recognized as Gujaratno Dikro. Again in 2022, he was awarded with the most prestigious Priest of Humanity Award, the Best Teacher Award by South Gujarat Chamber of Commerce, again in 2022. Friends, he has not stopped here. Out of his experience of 28 years, again he still is studying. As it is said that every professional is a student. He has to learn and study day in and day out. In 2023, he was conferred with the PhD in International Cyber Laws, Data Protection Act, and Artificial Intelligence by United Nations Commission. So he is a PhD holder in the year 2023. Dr. Snehal sir's relentless pursuit of excellence and his profound impact on the field of cyber laws make him invaluable asset to our community. Please join with him to Mr. Snehal sir. I will hand over the mic to him and we will be really blessed to listen to him. I would like to acknowledge here recently we had a session in Merchant Bank with our directors and IT committee team where he has given a very thought-provoking and practical tips for do's and don'ts and what is happening around the world. So it was very nice session. I am looking forward for the same session here. Thank you. So I'll just give my pen drive to.
first of all, I would like to thank the whole association of Jito for having me here, especially Ajay sir, that he has given my introduction twice. Like, he would be the first one who has given my introduction twice in the same day, within the span of 2 hours. So thank you. Similarly, Vikrant Sunki, he's a very wonderful friend of mine. He was with me in Asian School of Cyber Laws. All the people, the allied people who are here, and I am very happy to be part of this session. See, I will try my best. We have some one and a half hour, I guess. So as per the timings, I will convey my session. So just a second. I guess my phone is there. Na, at this. Yeah. So I wanted to show one thing, but later I will show some of the cyber tricks later. So we will just start with the session. See, first of all, it's not working. See, I dedicate all of my session to my father, who is now eternally present with me since 1.5 years, Shri Hemant Kumar Hasmukhlal Vakilna. Even I give my disclaimer that this session is strictly for education purpose, because the jurisprudence of cyber laws, ethical hacking, cyber security, as well as electronic evidence is at present in evolving stage. वो evolve हो नहीं गया है. So जो आज legal है वो कल illegal भी हो सकता है. So this session is as of the day, as per the law, to the best of my knowledge. So this is the disclaimer, and today we will learn about the minds of criminals in order to stay safe online. So just a second. See, talking about, we will start the session with के OTP. आप हर जगह सुन रहे होंगे that you should not compromise your OTP or you should not give your OTP. तो is there any person जो OTP देता है willingly? Willingly, generally willingly नहीं देता कोई. अभी तो सर ऐसा हो गया कि we are aware, we are enough aware कि we will not give OTP willingly. But obviously हर जगह वही कहते हैं, don't give OTP. If I am a third person, I will call you, ma'am. You will not give your OTP to me. So practically the thing is that no one deliberately gives OTP. Practically OTP हमसे लिया जाता है. एक टाइम ऐसा था कि क्रिमिनल हमारे डिवाइसेस हैक क्यों करते थे? क्योंकि उनको हम तक पहुंचना था. अब सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है. हमारा जो डिवाइस है, हमारा सिम कार्ड है, हमारे स्मार्टफोन्स है, दे आर द थिंग्स जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं. सो दे हैक अस to reach the device. So practically it is a psychological game. जितनी टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है और इंडिपेंडेंट हो रही है, we are being dependent on technology. So today in this session we would learn various type of cyber crimes as well as AI crimes in order to stay safe online. तो थोड़ा एक शुरुआत जो है वो मैं आपसे OTP के बारे में कहूँगा. एक्चुअली मुझे बहुत रिपीटेशन अच्छा नहीं लगता और अभी मैं ये एक चीज़ कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी आई विल शेयर दिस थिंग दैट उनको अचानक से देन उन्होंने लिंक भेजा 800 रुपीज़ का कि अब आप सर पे कर दीजिए 800 रुपीज़. अभी तक कुछ गलत लग रहा है आपको? उन्होंने वो लिंक के थ्रू 800 रुपीज़ पे कर दिए. 100 रुपीज़ पे कर दिए. अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो 800 रुपीज़ उनको मिले. अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो 800 रुपीज़ उनको मिले नहीं सामने वाले को. तो दे डिनाइड दैट वी आर नॉट, सामने वाले को, तो दे डिनाइड दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट 800 रुपीज़. नाउ
बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि इन्होंने तो भेज दिए थे। तो इन्होंने कहा टू एंड द कन्वर्सेशन के एक काम करिए, तो इन्होंने कहा टू एंड द कन्वर्सेशन के एक काम करिए, यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट, यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट, इज इट ओके? नाउ दिस पर्सन वाज आल्सो स्मार्ट, इज इट ओके? नाउ दिस पर्सन वाज आल्सो स्मार्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो 35,000 की लिंक है, आई एम एबल टू सी दिस, भाई ये तो 35,000 की लिंक है, आई एम एबल टू सी दिस। नाउ अगेन दे आर्ग्यू, एक काम करिए सर, एक काम करिए सर, हमने तो 1 ही रुपए की भेजी, आपको पता नहीं, हमने तो 1 ही रुपए की भेजी, आपको पता नहीं क्यों 35,000 दिख रहा है, आप मत क्लिक करिए, क्यों 35,000 दिख रहा है, आप मत क्लिक करिए, आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए, या हमसे कुछ मत करिए, सेंड मी, या हमसे कुछ मत करिए, सेंड मी द स्क्रीनशॉट, सो वी विल वेरीफाई एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या उनकी बातों में आने से पहले। नाउ टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन, सी our स्मार्टफोन, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, बट हमारा जो स्मार्टफोन है उसकी जो कंप्यूटिंग स्पीड है, इट इज मच, स्मार्टफोन है उसकी जो कंप्यूटिंग स्पीड है, इट इज मच ग्रेटर, इट इज इवन ग्रेटर देन अपोलो 11 विच वॉज द फर्स्ट। की जो कंप्यूटिंग स्पीड है वो स्पीड से कई गुना ज्यादा आजकल के 3000 और 5000 वाले स्मार्टफोन की स्पीड है। पोर्नोग्राफी एंड ऑब्ससिनिटी थ्रू कंप्यूटर, साइबर डिफेमेशन, मोबाइल फोन क्राइम्स, एटीएम फ्रॉड्स, फाइनेंशियल क्राइम्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, और अभी एआई, आईओटी, डीप फेक, वी आर फेसिंग इट इन आई गेस डे टू डे चैलेंजेस। अब डिजिटल स्कैम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम आपको कौन सा, किसी गांव का अगर आपको पता हो तो, विच इज द नेम? जामतारा, नेट फ्री, ठीक है। अभी सर ये सारी चीजें पुरानी हो गई, देखिए सबसे लास्ट है जामतारा, दिग, राजस्थान, दिस आर द टॉप 6 प्लेसेस, सब विलेजेस हैं। जामतारा इज नो मोर नंबर 1। लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज जैसे पता चलती है, देन दे सक्सीड। जो इनके पीछे थे वो अभी आगे आ गए जामतारा से। तो सिमिलरली दिस साइकोलॉजिकल माइंड गेम जो मैं अभी आपको कह रहा था, तो एक स्कैम के बारे में आपने सबने सुना होगा, वो OLX वाला। उसमें क्या होता है कि वो आपको लिंक भेजेगा कि भाई हमें अच्छा लगा आपके वहाँ ये फर्नीचर, हम एडवांस आपको देना चाहते हैं, दे विल सेंड यू अ लिंक। वो कहेगा कि भाई मैं आपको एडवांस में 10,000 रुपये दे रहा हूँ, तो वो 10,000 लेने के लिए आप इस पर क्लिक करिएगा, तो ये 10,000 जो है वो मेरे अकाउंट से जाके आपके अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको 10,000 ट्रांसफर करूंगा, तो आपको तुरंत ही 10,000 मिल जाएगा। आपने क्लिक किया, 10,000 गए, फिर से वो फोन करेगा, आप कहोगे कि भाई आप तो देने वाले थे, वो तो चले गए। ही विल अगेन आर्ग्यू कि सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज देता हूं, अब मैं आपको 20,000 भेज दूंगा, पहले के 10,000 और अभी के 10,000, अब 20,000, तो 20,000 आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफर होंगे। आप क्लिक करोगे तो मेरे अकाउंट से 20,000 निकल के वो 20,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो 20,000 के लिए आप ये क्लिक कर दीजिए। उन्होंने क्लिक किया, 20 भी गए। एक थंब रूल है फाइनेंशियल सिस्टम का कि हमें मेहनत पैसे लेने के लिए तो करना ही नहीं है, वो तो कोई भी किसी के अकाउंट में भेज देगा। वी आर नॉट सपोज टू डू एनी एक्टिव एफर्ट, ना तो हमें किसी लिंक पे क्लिक करना है, ना तो OTP शेयर करना है, और ना ही QR कोड स्कैन करना है। पैसे तो आपके अकाउंट में आ ही जाते हैं। इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट यू आर सपोज टू डू एनीथिंग। सेकेंड थिंग कि फिर से साइकोलॉजिकल स्कैम, वो जितनी बार रिपीट करेगा 10,000 10,000 20,000 20,000, वो आपके माइंड में डोमिनेट करेगा। सो आपको लगेगा कि बस 10,000 आ गए ना, मैं इसको क्लिक करूंगा 10,000 आ गए। सो दिस आर द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम्स जो आपके साथ खेलते हैं। सो दिस आर द थिंग्स।
सी नाउ टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया फ्रॉड्स, तो उसमें हम में से व्हाट्सएप कौन यूज नहीं करता? ओके फाइन. सो व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन किसने पढ़े हैं? तो इफ यू विल रीड terms and condition, it is very clearly mentioned that all the audio, video, visual, text, image, everything that you share is a public information and it is not a private information. मतलब कल उठ के कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर आपसे पूछे कुछ चीजें, अगर आपकी जानना चाहे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मेटा डेटा व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं आपके बिहाफ पे. दे कैन शेयर द डेटा because it is a public information. So this is the thing we need to understand before doing any important work on WhatsApp. It is only a social media tool. अब ये एक केस है जिसमें प्रैक्टिकली एक फ्रेंड को एक मैसेज मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ओटीपी मांगू, विल यू गिव मी इफ आई एम अ थर्ड पर्सन? ओके. आपके वाइफ और आपके हस्बैंड आपसे ओटीपी मांगे तो यू विल गिव मैसेज में? बस द सेम सिनेरियो. एक ब्रदर ने अपने ब्रदर से ओटीपी मांगा, उन्होंने दे दिया. मोबाइल हैक. अब दैट क्रिमिनल डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ टू बी दैट विक्टिम उनके वेयर अबाउट से ओटीपी मांगता है, व्हाट्सएप पे फोन हैक हो जाता है. सो दिस वर द मास केसेस नॉट ओनली इन सूरत बट इन आई गेस ऑल ओवर इंडिया. तो हर जगह ऐसे केसेस होते हैं, सबके लाइन से व्हाट्सएप जो है वो हैक हो रहे हैं. अब ये केस में क्या होता है कि अगर आप विक्टिम बन गए, चलिए आपसे गलती हो गई, सबसे पहले तो वो गलती आपसे नहीं हो उसके लिए बचने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपको इवन आपके वेयर अबाउट्स ने, नोन पर्सन ने आपसे ओटीपी मांगा, तो सबसे पहले तो आप उनको कॉल बैक करिए ऑन हिज सिम नंबर, क्योंकि हो सकता है कि उनका फोन कॉम्प्रोमाइज हुआ हो एंड क्रिमिनल इज डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ टू बी दैट पर्सन. सो एक बार आप कॉल बैक करिए. सेकेंडली आप क्या करोगे? व्हाट्सएप में हैव 2 स्टेप वेरिफिकेशन. उसमें प्रिवेसी और सिक्योरिटी में देयर इज अ फीचर कि जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसके बेसिस ऊपर अगर किसी को आपका मोबाइल हैक करना है तो खाली 1 स्टेप, दैट इज अभी पहला स्टेप ओटीपी हो गया बिकॉज इट इज व्हाट्सएप, आपका नंबर है, एंड सेकेंड स्टेप इज अ डिजिट और योर बायोमेट्रिक, जिसे या मतलब इस काइंड ऑफ योर पास नंबर, उसके बगैर वो आपका व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाएगा. सो वी नीड टू हैव एटलीस्ट 2 स्टेप वेरिफिकेशन इवन इन व्हाट्सएप. अब एक बार आप विक्टिम बन गए तो आप क्या करें? कुछ और मत करिए, आपके किसी भी रिलेटिव का फोन ले लीजिए, व्हाट्सएप उनका ओपन करिए, उसमें हेल्प में जाइए, वहां कॉन्टेक्ट अस है, वहां जाके यू कैन मेंशन द थिंग्स, द प्रॉब्लम, गिव अ स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा. आफ्टर दैट आप इसको अनइंस्टॉल करिए, री इंस्टॉल करिए, नाउ यू विल गेट द ओटीपी. And always don't forget to give a complaint to your nearest police station, क्योंकि आपके WhatsApp का डिस्गाइज बन के आपकी आइडेंटिटी लेके उन्होंने अगर कोई साइबर फ्रॉड किया हो एंड विच इज नॉट इनटू अवर नॉलेज, तो इट इज बेटर कि हम एटलीस्ट एक कंप्लेंट कर दे एंड वी शुड हैव अ रिसीव्ड कॉपी, उसकी जेरोक्स पे वी शुड हैव अ रिसीव्ड कॉपी. सो दिस आर द थिंग्स. सो ये जो हमने बात की, एक है चैट बैकअप व्हाट्सएप पे. सो अकॉर्डिंग टू मी चैट बैकअप, इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट, ये सब्जेक्टिव है, इसमें मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज चैट बैकअप इज अ थिंग कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसी के लिए नहीं. तो इसमें या इट डिपेंड्स, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट आई विल नॉट सजेस्ट. मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी अच्छा होता है, हैकर्स के लिए भी अच्छा होता है. तो अब फेसबुक फ्रॉड, फेसबुक भी हम सब यूज कर रहे हैं. अब एक केस है, बट आगे कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग केसेस है.
तो फेसबुक के लिए मैं एटलीस्ट हम सबको पता है कि वी शुड नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, तो मैं ये केस जाने देता हूं, आई विल स्किप इट। स्नैपचैट क्राइम्स, स्नैपचैट में एक फीचर है, आप में से हम में से कोई स्नैपचैट यूजर्स है? उतने यूजर्स नहीं है, यस एक है, अच्छा काफी लोग हैं। तो उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेज आपको पता है, राइट? तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैसेज में आप या हम कुछ भी अगर ऐसा पोस्ट करें, तो वी शुड बी अवेयर कि एटलीस्ट देयर इज अ फैसिलिटी विच इज अवेलेबल इन ऑल द फोन्स एवरीवेयर विच इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो कोई भी मैसेज कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, कोई भी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकता है एंड दे कैन मिसयूज द डिटेल्स विच यू हैव शेयर्ड। इंस्टा फ्रॉड, इट वुड बी सिमिलर टू द सोशल मीडिया क्राइम, तो मैं थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूं बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। सी दिस इज द केस एशले मेडिसिन, इसकी आपको इवन नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। व्हाट वाज दिस? It was a website which encouraged dating and they ensured privacy in online affairs. तो उन्होंने कहा कि life is short, go for an affair. But यहाँ आपका जो भी अफेयर रहेगा वो प्राइवेट रहेगा, वो पब्लिक नहीं होगा। अब हुआ क्या कि किसी हैकर ने इनके सर्वर को हैक कर दिया और वो जो सारे डेटा थे वो पब्लिक कर दिया। नाउ बट प्रैक्टिकली इसमें से 1.5 लाख लोग इंडियन थे। बट प्रॉब्लम ये है कि सी देयर आर द थिंग्स, आप एक बार इंटरनेट पे आ गए देन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन इट। दिस इज अ पर्सन जिन्होंने फ्रीडम 251 और ड्राई फ्रूट स्कैम्स, ये 2 स्कैम्स किए। एक फोन उन्होंने मतलब रखा था जो आपको ओनली 251 में देंगे और अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट किया था, बट इसमें खाली थिंग द इम्पोर्टेंट कंडीशन वाज कि यू आर सपोज टू गिव 251 फर्स्ट सो दैट ही कुड advertise, he could do the production of this phone like mass production और वो दे सके। तो जैसे ही सबने पैसे दिए, स्टोरी वाज ओवर। सिमिलरली ड्राई फ्रूट स्कैम, वो भी बहुत अच्छा स्कैम है। उसमें क्या हुआ कि यही व्यक्ति, ही इज द सेम पर्सन, बाद में व्हाट ही डिड दैट के वो किसी ड्राई फ्रूट वाले के पास गया कि आई नीड टू टेस्ट सम ऑफ द ड्राई फ्रूट, मुझे बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए गिफ्ट करने के लिए। अब उन्होंने ड्राई फ्रूट टेस्ट किया, 1500 रुपए के ड्राई फ्रूट थे, उनको अच्छे नहीं लगे। अब दुकानदार वो स्मार्ट पर्सन, तो वो गया अंदर, वो सेम डब्बा जो है उसके अंदर का जो मुद्दा माल होता है, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर सब्सटेंस, वो उसने दूसरे डब्बे में डाला और उसके पास लेके आया कि नाउ सी दिस, ये उससे अच्छा है, इट इज अप फॉर 1600। अब उसने टेस्ट किया कि नहीं इसमें भी मजा नहीं है, फिर वही चीज उसने रिपीट किया और 1850 के लिए उसको दिया, देन ऑल्सो ही डिड नॉट लाइक। फिर 2000 रुपए करके एक बड़ा सा डब्बा लिया, उसमें रखा एंड ही प्रेजेंटेड टू इट, दिस इज द बेस्ट थिंग, पूरे एरिया में इससे अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे उसने टेस्ट किया, ही वाज लाइक कि बस यही चाहिए था, दिस इज इट, यही मुझे चाहिए, डू वन थिंग, 10 बॉक्सेस आप पैक कर दीजिए। सेकेंड डे वो फिर से आया, ये बहुत अच्छा बॉक्स था, 20 और पैक कर दीजिए, कि मैं जिनको ये दे रहा हूं ना, तो सम कुछ करिश्मा हो रहा है, तो अभी मैं इससे मास लोगों को देने वाला हूं। तो फिर से 1 वीक के बाद वो गया और उसने उनको मैसेज दिया कि भाई 10,000 बॉक्सेस इसके आप पैक कर दीजिए, इट इज अ वंडरफुल थिंग। उन्होंने पैक कर दिया बस, एंड देन द स्टोरी वाज ओवर। साइकोलॉजिकल गेम, जैसे ही ट्रस्ट डेवलप हुआ, ही चीटेड। डेटिंग फ्रॉड्स, वी आर अवेयर अबाउट दैट, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग स्कैम्स एंड ऑल। मैं आगे बढ़ूं, वी आर अवेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके राइट। अब सब पुराना हो गया, तो ये एक इंटरेस्टिंग केस था
इसमें सी इसका मकसद यही है कि ऐसा भी होता है. देयर वर टू पार्टनर्स, दे वर डूइंग वर्क इन थाईलैंड, कुछ बिजनेस वर्क करते थे. तो लोग जाते हैं बैंकॉक बहुत बार. अब ही वॉज हैविंग अ अफेयर विथ अ थाई लेडी. अब जब वो वापस आए तो थोड़े दिन के बाद पुलिस उनके घर पे आई उनको अरेस्ट करने के लिए इन रेप केस ऑफ दैट थाई लेडी. अब हुआ क्या कि वो जो थाई लेडी थी उनके पास वो सारे एविडेंस थे जो रेप में होते हैं. What she did, she contacted Indian PMO office और intimated Indian embassy in Thailand about this thing, rape cases. और यहाँ आके स्पेसिफिकली वो इंडिया आई, मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया और इनके ऊपर ये केस किया. इट वॉज अ काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन. बट बस आप ज्यादा सोचोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है. तो मतलब जो बैंकॉक जाते रहते हैं, दे शुड बी अवेयर कि दिस इज अ केस. फ्यूचर में ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के साथ, या आपके फ्रेंड्स में कोई हो तो यू कैन टेल देम. नाउ ऑनलाइन बिल पेमेंट एंड केवाईसी फ्रॉड. सी वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग. जो जो हमें पता है वो मैं भगाऊंगा. कोई भी ऐप डाउनलोड मत कीजिए. आपके ऊपर मैसेज आता है कि बिजली का बिल आपने भरा नहीं है, भले आपने भरा हो, कट जाएगा. आप लिंक पे क्लिक करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, फोन का एक्सेस लिया जाता है एंड आपका ओटीपी दिख जाता है. राइट ना? ये तो आप हमें पता है, आई होप. बस तो ये सारी वही चीजें तो मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा. सो डोंट डाउनलोड एनी ऐप. इट इज इंपॉर्टेंट. लिंक के थ्रू कोई भी अननोन ऐप आप डाउनलोड मत कीजिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका जो ब्राउजर है उसमें बहुत सारी कहानी है. आपका जो भी ब्राउजर होगा, इट कुड बी मोजिला, लाइक फायरफॉक्स, क्रोम, एनीथिंग, ओपेरा, उसमें बहुत कहानी होगी. ऑटोफिल आपका होगा, आपकी हिस्ट्री होगी, आपने जो डिलीट की होगी, फिर भी उसकी कुछ फुटप्रिंट्स मिलती रही होगी. तो यू शुड अपडेट इट, बिकॉज कोई भी पैच अगर उसमें इंस्टॉल किया जाए तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और फिर वो किसी और के डायरेक्शन पे चल सकता है. तो योर ब्राउजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पार्टी लिंक से कोई भी ऐप आप प्लीज डाउनलोड मत कीजिएगा, बिकॉज इट विल कॉम्प्रोमाइज योर फोन. केवाईसी फ्रॉड भी ऐसे ही होते हैं कि आपको लिंक के थ्रू क्लिक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के दे विल कॉम्प्रोमाइज योर फोन. सो दिस इज अ फ्लिपर डिवाइस. See, this is a very important device. What it does is, कि it is full of hacking kit. It is not legal practically. अब ये कोई भी कार को अनलॉक कर सकती है. RF hacking जो है उसके लिए वो यूज हो जाती है, because it will crack the encryption model of car और उसके अंदर से जो भी vulnerabilities है वो ले लेंगी. आपका ब्लूटूथ ऑन है तो कोई ये डिवाइस वाला व्यक्ति आपके ऊपर पॉपअप्स भेज सकेगा. अगर आपने क्लिक किया वो पॉपअप्स पे, कहीं ना कहीं आप अलग जगह पहुंच जाओगे. कार्ड क्लोन कर सकते हो आप. इवन बैंकिंग कार्ड आप क्लोन कर सकते हो. इवन होटल रूम्स के जो कार्ड है वो भी आप क्लोन कर सकते हो. सो एट प्रेजेंट मैं ये प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, बट आपको खाली अवेयर कर रहा हूँ. सो यू बी अवेयर एंड डोंट बाय इट. इट इज नॉट लीगल. डिजिटल अरेस्ट, वी आर अवेयर. आर वी अवेयर अबाउट डिजिटल अरेस्ट? अभी तो हमारी हेलो ट्यून हो गई है. मैं और एक्सप्लेनेशन दूं इसमें कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स. या सी गेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी गेमिंग में पहले तो हम में से कौन कौन लोग गेम्स खेलते हैं? सब. तो अभी कौन सा अच्छा गेम कौन सा चल रहा है? 3 पत्ती, कैंडी क्रश. आपने देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं. पहले तो आप अगर किसी ऑनलाइन गेम्स के साथ कनेक्टेड हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो जिनकी रोजी रोटी वो गेम है. बिकॉज विक्टिम्स इधर उधर इतना मनी दे कैन सी, एंड
दे विल वही इट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ दिस पीपल. सो वो गेम पे ही होंगे. देयर आफ्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो गेम्स है उसे बहुत सोच समझ के परमिशन दीजिए. यू कैन गो इन सेटिंग, आप एप्स में जाइए, आप देखिए कौन सा फोन मतलब कौन सी गेम क्या परमिशन ले रही है, कॉन्टेक्ट क्यों चाहिए उनको. देयर आफ्टर देयर आर सो मेनी थिंग्स जो वो लेते हैं. फोटो का एक्सेस, कैमरा का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस. व्हाई दे नीड? इफ दे डोंट नीड, डोंट गिव. इफ दे हैव टेकन इट, टेक इट बैक. अगर आपको गेम खेलनी ही है तो. Thereafter, it is very important, don't do any financial transaction with any unknown person in that gaming platform. There are certain games like Pokemon Go, True Fighters, मतलब जहाँ पे आपको स्कैन करना होगा and you will get some or other codes. There are certain games, उनकी करेंसी जो है वो एज अ बिट क्रिप्टो असेट यूज होती है. very good source of transportation international. तो और ये सारी जो गेम्स है they will take your capture points, they will take your locations and they will get lots of information about you on the basis of all these things. Similarly for kids, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आप उनको अगर कोई अलग डिवाइस भी दे दो तो क्रिमिनल जो है वो उनसे via this game वो connect होंगे. then they will give them task. if you are aware, are you aware about blue whale game? it was like mass suicides हुए थे वो cases में. so because के वो आप ही के gadget की information जो आप ही की गलती के वजह से उनको मिल रही है तो वो उनके basis पे आपको blackmail करेंगे. they will give you the task to perform and ultimately they will make you commit suicide. Same way there was one more game which was Momo game. कि बीच में it was kind of blue whale games but बीच में horror images आएंगी. so कोई भी ऐसी games हो कि जो task based हो तो be aware, वो जरा आप avoid करिए. फिर बहुत सारी ऐसी games है जो बैन की गई है इंडिया में because they are a part of Chinese app. Even Chinese app के बदले भी there are other apps from Singapore, US and other countries which have been banned. अब ये apps banned है फिर भी आपको backdoor से मिल रही है in the form of link. तो ये क्या हुआ? Government ने ban किया है. There is no support of Android device or iOS device, but you are getting that game via link. So it is a third party app. उनके developer की कोई guarantee नहीं है. And they are accessing the information in your mobile. ये एक बात हो गई. So don't download that type of game from other links. एक और dangerous situation में आपको कहता हूँ कि there are certain games जो आपके फोन में है. Now, eventually वो game banned हो गए, वो apps banned हो गए. तो आपको ऐसा लगेगा कि you are fortunate कि आपके फोन में तो आ गया, अब banned हुआ. But इट इज अ डेंजरस सिचुएशन क्योंकि आपने अभी उनको अनइंस्टॉल नहीं किया. नाउ दे आर नो मोर पार्ट ऑफ अ लेजिटिमेट ऐप स्टोर. नाउ दे आर थर्ड पार्टी ऐप और वो आपके फोन का एक्सेस ले रहे हैं. सो दिस सिचुएशन इज वेरी डेंजरस. सो बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग. तो ये सारी एप्स है जो बैंड हुई है. ये एक चीज है. इसमें क्या हुआ था कि एक घर है जिसमें सबके फोन हैक हो जाते हैं. मतलब अगर सर जाएंगे, अगर वो सर का घर है, उनके ब्रदर है तो ब्रदर का फोन भी हैक, सब लोग हैक और सबको एक दूसरे के नंबर से मैसेजेस मिलते हैं और मैसेजेस भी अच्छे, गुड वन. मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो वो उनको कहेंगे कि अगर किसी को डांट दिया तो जाके उनको सॉरी कहो. फिर बहुत सारी धमकियां भी मिलने लग जाती है कि भाई अगर आपका बेटा वहां है, अभी उसके ऊपर मैंने गन रखी है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं बुलेट चला दूंगा. और उनको इमेजेस भी भेजे गए थे. जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि हु वाज अ क्रिमिनल.
एक बच्चा 10 साल का, what he did, parallel apps, आपको शायद पता हो तो parallel apps, these are the apps जो multiple apps आप एक फोन के थ्रू यूज कर सकते हो. तो he used this application, इनका फोन इनके नाम पे, इनका फोन मतलब दोनों जगह चलेगा फोन. तो वो कभी भी किसी के फोन से किसी का भी फोन यूज करता था. सो वो उससे कहाँ सीखा? द ग्रेट गुरु, यूट्यूब, गूगल. सो ये सारी चीजों में यू शुड बी वेरी अवेयर कि आपके जो किड्स है वो क्या लर्न कर रहे हैं, बिकॉज वो मेटावर्स का टाइम होगा जब कुछ एज आफ्टर कपल ऑफ ईयर ये शुरू हो जाएगा. सो इवन गैम्बलिंग लिंक्स, लोगों को लगता है कि हम गैम्बलिंग लिंक्स के थ्रू गैम्बलिंग करेंगे तो इट इज गुड, बिकॉज वो वही लिंक से होता है. इट इज अ प्राइवेट लिंक, कॉन्फिडेंशियल प्लेस, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डार्क वेब एंड दे टेक द एक्सेस ऑफ योर फोन. तो वो आप जो भी गैम्बलिंग लिंक के थ्रू गेम्स खेल रहे हो, बट प्रैक्टिकली यू शुड बी अवेयर कि आपका फोन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गया है. और एक बार अगर ऐसा कुछ हो जाए और आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो भी गया हो, देन यू शुड नॉट वरी. व्हाट यू शुड डू, पहले तो बैकअप ले लीजिए, वो भी पोर्टेबल डिवाइस में. पोर्टेबल डिवाइस में आपने बैकअप ले लिया, देन व्हाट टू डू, द बेस्ट थिंग, फोन को फॉर्मेट कर दो. क्लियर? आफ्टर दैट आपका जो भी वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे अपडेट कर दीजिए. एटलीस्ट इतनी चीज आप करोगे ना तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा और आप आपके हिसाब से देन यू कैन यूज इट. अगर आपको ये लग गया कि वो कुछ गलती हो गई है तो आप सुधार सकते हो, बट फिर आप उसको कंटिन्यू करोगे देन वी कैन नॉट हेल्प इट. सी, ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिलीवरी स्कैम्स. अब जॉब में अभी कैसे कैसे जॉब्स होते हैं. पहली बात कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड दे आर आस्किंग मनी फ्रॉम यू, बट ऑब्वियस है कि ये फेक होगा, क्योंकि अगर उनको आपसे पैसे लेने ही है, अगर उनको आपको पैसे देने ही है तो वो लेंगे क्यों. तो जो भी ऐसे जॉब हो जो आपसे रिफंडेबल डिपॉजिट मांगेंगे, सो अवॉइड देम. सिमिलरली कोई भी मैलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिए आप, और हैव अ प्रॉपर वेरिफिकेशन बिफोर इंटरैक्टिंग इन सच प्लेटफॉर्म्स. अब शॉपिंग में एक तो क्या होता है, फेक वेबसाइट्स कि जिसके ऊपर आप गुड्स लोगे और आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी. सेकंड कि आपको डिलीवरी मिलेगी बट हाँ अलग गुड्स या थोड़े लो क्वालिटी गुड्स आपको डिलीवर होंगे. और तीसरा के स्पूफ पेज कि जिसमें आपको जेन्युइन वेबसाइट के इमेज दिखेंगे बट इट इज अ फेक पेज. एंड देयर आर इवन थर्ड पार्टी लिंक एंड एप्लीकेशन कि जिसके बेस पे आपका फोन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. इसमें से कुछ कुछ चीजें अगर आपके साथ हुई है, स्टार्टिंग वाली चीजें, देन यू कैन कॉल ऑन 1915, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नंबर. और बाकी सब चीजों के लिए अगर आपके पैसे गए हैं तो एज अ सॉल्यूशन यू कैन कॉल ऑन 1930 विच इज सेंट्रल साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर, एंड उनके बेसिस ऊपर आप अकाउंट उनका फ्रीज भी करा सकते हो. फेक पार्सल आई थिंक यू वुड बी अवेयर अबाउट. अब ये जो डिजिटल अरेस्ट की अगर हम बात करें और जो भी लोग हैं डिजिटल अरेस्ट में, तो वो कौन होते हैं? यू नो, इवन दे आर विक्टिम. मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपको पुलिस बनकर, जो हमारी बात हुई यू आर अवेयर अबाउट डिजिटल अरेस्ट, तो उसमें जो भी पुलिस बनकर आपसे मनी डिमांड कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो विक्टिम, बिकॉज दिस इज नोन टू बी साइबर स्लेवरी. इसमें क्या होता है कि जो भी जॉब सीकर्स है जो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं इन द कंट्रीज लाइक कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, एशियन कंट्रीज, तो वहां इनके पासपोर्ट्स दे विल टेक इट और इनके ऊपर टॉर्चर करेंगे, एंड देन दे विल मेक दे डू ऑल सच स्कैम जो रिसेंटली हुआ था, राजकोट हॉस्पिटल स्कैम, महाकुंभ स्कैम, जिसमें सीसीटीवीज हैक किए गए थे. फ्रैंकली अब ये जो बेस है इसके ऊपर मैंने इंटरनेशनल
कॉन्फ्रेंस में 2017 में ये प्रॉब्लम को एड्रेस भी किया था और कुछ सॉल्यूशंस मेरी तरफ से मैंने उनको दिए भी थे। प्रैक्टिकली सी हर जगह के सीसीटीवी दे आर नॉट सो मच, अब मैं आपको क्या कहूँ कि सिक्योर एंड सेफ, बट ऑब्वियस बिकॉज कि जनरली हमें क्या चाहिए सीसीटीवी में, गुड बेस्ट फीचर जो हम हमारे मोबाइल में देख सके, एंड सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस सॉरी, लो प्राइस, चीप। तो वो तो चाइनीज प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या लो सिक्योर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो हम यूज कर रहे हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। प्रैक्टिकली एक वेबसाइट है, मोस्ट प्रोबेबली जो भी सीसीटीवीज है 70-80% सीसीटीवीज आर समवॉट कनेक्टेड विद चाइनीज, आइदर दे आर कनेक्टेड विद चाइनीज एप्स, दैट इज अलग लिंक से आपको मिलेगा, या इवन अगर आप प्ले स्टोर में से भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीसीटीवी विच आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे फोन पे आप देख सकोगे वैसा, वो पुराने जमाने वाले नहीं, दे आर कंपैरेटिवली सेफर, जिसमें डीवीआर अलग होता है और आप मोबाइल पे नहीं देखते। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इधर प्लग एंड पे प्ले वाला, या फिर डीवीआर हो एंड कनेक्टेड हो आपके फोन के साथ। तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम क्या है, वो किसी न किसी तरह से या तो चाइनीज ऐप के साथ या चाइनीज सर्वर के साथ या अनसिक्योर ऐप या अनसिक्योर सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। तो कई बार तो ये जो सर्वर के डेवलपर्स, मतलब जो भी व्यक्ति सर्वर के सिक्योरिटी का वर्क लेते हैं या आपको गारंटी देते हैं, वही लीक करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन बैकडोर से, और डार्क वेब में ये सारी चीजें बेची जाती है। और कई बार क्या होता है कि जब वो ऐप आप डाउनलोड करते हो विच इज अ थर्ड पार्टी ऐप, जो आप क्रोम या किसी ब्राउजर से इंस्टॉल करते हो, तो दे ओनली टेक द एक्सेस ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन योर मोबाइल। अब जहां आप वो ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो, सी नाउ दिस इज अ सर्च इंजन विच इज नोन टू बी शॉर्टऑन, वो एक चाइनीज सर्च इंजन है, वैसा हम कह सकते हैं। वो आपके एरिया में जितने भी सीसीटीवी है जो इनके सर्वर के साथ कनेक्टेड है, उनको देखने के लिए, मतलब कोई किसी के भी सीसीटीवी को देख सकता है, उसके लिए दे चार्ज सर्टेन फीस। बस वो फीस आपने उनको दी, शायद आपके एरिया में, आपके रेडियस में यू विल शेयर योर लोकेशन, और जितने भी वहाँ सीसीटीवी है जो वो सर्वर के साथ है, तो वो आप देख पाओगे। सो दिस इज द थिंग। और हाँ, एक और चीज कि हम सब आलसी भी बहुत है, सो व्हाट वी डू, हम पासवर्ड भी चेंज नहीं करते, तो डिफॉल्ट पासवर्ड ही हम रहने देते हैं। अब आपने किसी भी कंपनी का नाम सर्च किया और डिफॉल्ट पासवर्ड देखा, आपको तो यूं ही मिल गया, आप यूं ही हैकर बन के वो डिफॉल्ट पासवर्ड आपने रखा एंड यू आर एबल टू एक्सेस द सीसीटीवी। तो इसमें तो यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन ऑफ बीइंग हैकर, तो हम सब कर सकते हैं ये। दिस सेशन इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशन पर्पस, disclaimer. Then, so what can we do? See, सबसे पहले तो it is very much important कि आप जो सबसे ज़्यादा सिक्योर कैमराज हैं उसी में आप इन्वेस्ट करिए। I will not say here because I am not promoting anything. आप खुद सिक्योरिटी फीचर्स देखिए and then you figure it out. Second, change the password. Don't keep the default password. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, मैंने मेरे पेपर में भी ये चीजें दिया है, आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन दिस थिंग दैट देयर शुड बी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सीसीटीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीसीटीवी कोई ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए कि किसी और की प्रिवेसी का उल्लंघन हो, लाइक चेंजिंग रूम्स हो, ये है वो है, कुछ सिक्योर जगह पे, जहां सम प्राइवेट जगह पे वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो, then that person is liable under section 66E, 67A, 67B of IT Act. 5 से 10 साल तक उसकी लायबिलिटी आ सकती है विद फाइन।
और अगर ऐसा कुछ भी हो कि सीसीटीवी कोई पब्लिक प्लेसेस पे हो, देन इट डिमांड्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड सरप्राइज चेकिंग बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम होगा एंड करप्शन का भी काम होगा, मतलब जो भी हो, एम्पल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। सो ये बात भी है कि अनलाइक एआई वी आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ अवर डेटा, मतलब हम वही बात करते हैं जो हमारे नॉलेज में है। इफ एनीवन विल करप्ट योर डेटा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वही चीजें जो ये लोग कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल। सो द थिंग इज दैट कि ये सारी चीजें जब आपका डेटा किसी गलत हैंड पे गया, देन इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव। तो आपका डेटा कहीं और कैसे जाएगा? आपके ब्राउजर से, जो मैंने अभी आपको कहा। तो ब्राउजर में व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ऑटोफिल। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं कि हम बिकॉज ऑफ अवर लेजीनेस, आपका नाम आया, ये किया, ऑटोफिल हो गया। वेरी गुड थिंग फॉर क्रिमिनल, फैंटास्टिक थिंग। तो आपके ब्राउजर से आपके पासवर्ड तक वो ऐसे ही पहुंच गया। सिमिलरली आपकी हर ब्राउजर में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज होती है, इसीलिए वो कांस्टेंट अपडेटिंग फेज में होता है। तो ऑलवेज अपडेट योर पासवर्ड, ब्राउजर, एंड इवन अपडेट योर पासवर्ड, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ऑटोफिल आप प्लीज मत रखिएगा, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि सर्वर, जहां से अगर डेटा आपका स्टोलन हो गया तो सर्वर में भी आप प्रॉपर इन्वेस्ट कीजिए, क्लाउड डेटा स्टोरेज में इन्वेस्ट कीजिए। ऑलवेज गो फॉर AAA मॉडल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये केस है जिसमें एक व्यक्ति टैक्सी ढूंढ रहा था, तो वही गूगल, हमारा ग्रेट गूगल, ही सर्च चीपेस्ट टैक्सी। अब ये चीपेस्ट वर्ड को आप चीप ही रख दीजिए, बिकॉज यू विल गेट डिजिटल मार्केटिंग स्कैम्स। तो उन्होंने देखा, अब उनको मिला कि भाई 7 रुपीज पर किलोमीटर, बट आपको 100 रुपीज खाली एडवांस में देने हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये वो वाला व्यक्ति नहीं है हमारा 251 वाला, 100 वाला। सो व्हाट ही डिड कि आपको 100 देने हैं, बट अकाउंट ट्रांसफर, वो यूपीआई नहीं, अकाउंट से आपको 100 रुपीज ट्रांसफर करने होंगे, बट ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर। अब इसने ट्राई किया, वो अकाउंट से ट्रांसफर हुआ नहीं। तो ये जो व्यक्ति है, उन्होंने कॉल किया, तो थोड़ी देर बाद एक प्रॉपर डिसेंट व्यक्ति ने उनका जो फीडबैक टीम है वहां से उन्होंने उनको फोन किया कि सर आपके वहां शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट इज द इशू। तो उन्होंने कहा कि भाई 100 रुपीज की बात है, आई विल यूपीआई इट। तो ही टोल्ड कि भाई यूपीआई वाला जो है वो सर्वर फ्लडेड है, इट्स नॉट पॉसिबल, आप अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए, वो हो रहा है, बट इट वाज नॉट वर्किंग। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं हमारी टीम को भी कनेक्ट कर देता हूँ एंड वी विल ट्राई इट। तो उन्होंने ट्राई किया, ये शायद केस हमारी अभी बात हुई थी, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनसे गूगल मीट का लिंक उन्होंने भेजा कि भाई यहाँ हम आपके प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेंगे और हम सॉल्यूशन ले लेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम हो फिक्स हो जाएगी। सो उन्होंने वो मीटिंग को ज्वाइन किया, स्क्रीन शेयर किया, और बड़े बड़े फ्रॉड्स हो गए उनके साथ, बिकॉज गूगल मीट में उन्होंने क्या किया, स्क्रीन शेयर। तो ओटीपी जो है वो दिख गया, खत्म। वो तो रेडी था लैपटॉप लेके, जैसे ही ओटीपी दिखा बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होने लगे। आई गेस वही यही सिचुएशन थी। तो यहाँ हमें बहुत अलर्ट रहना है, बिकॉज इस तरह से नहीं तो इस तरह से, बट दैट पर्सन विल मेक यू गिव योर ओटीपी टू हिम। तो दिस आर द थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर अबाउट। फ्लैट स्कैम्स, ये शायद हमें पता होंगे, हो रहे अभी। ब्रोकर्स, मतलब आपको कुछ फ्लैट्स
दिखेंगे. अगर आपको कोई नया फ्लैट परचेज करना हो ऑनलाइन, देन दे विल गिव यू एडवर्टाइजमेंट. आप से कुछ एडवांस मांगेंगे इफ यू आर गोइंग फॉर दिस थिंग. रेंट पे अगर आपको फ्लैट्स लेने हो तो दे विल आस्क यू एडवांस, और जिससे आपका रेंट कुछ 50% कम हो जाएगा. आपने एडवांस दिया, वो व्यक्ति गायब. अब वो व्यक्ति का केवाईसी किसी और का होगा. और कई बार क्या होता है कि वो, अगर आपको कोई फ्लैट देखना है तो वो आपका गेट पास बनवा के देंगे, और वो गेट पास के लिए अगर उन्होंने आपको वो जो ओटीपी दिया, दैट वुड बी द ओटीपी ऑफ सम सच सिमिलर टाइप ऑफ वेबसाइट्स. तो वो आप ही के नाम का अकाउंट खोल रहे हैं. नाउ दैट पर्सन विल डिस्गाइज योर आइडेंटिटी एंड ही विल बी फूल अदर पीपल. तो ये सारी चीजें भी हो रही है. सो फ्लैट स्कैम्स, नेवर बिलीव एनीवन ऑनलाइन. अब ऑनलाइन मैट्रिमोनी, सी अब इसमें द थिंग इज दैट कि एक ऑनलाइन मैट्रिमोनी की जो प्लेस थी, I am aware ना, there are some people from matrimonial websites also, but see इसमें मतलब प्लेटफॉर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम इसकी एक स्टोरी कह रहे हैं कि दो व्यक्ति, वन इज सिमरन एंड वन इज राज, जो मिलते हैं ऑनलाइन मैट्रिमोनी में. नाउ सेम वही वो DDLJ वाला सीन, that one is a British person. अब they are coordinated properly with each other. तो क्रिसमस के दिन Raj promised Simran to give couple of gifts, like couple of Rado watch, latest iPhone, Armani clothing, worth ₹35 lakh. अब जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें गिफ्ट मिले, she got a call from police कि भाई पार्सल तो आपके नाम का आया है, but there are certain drugs and counterfeit currencies. तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए. तो इनके किसी फैमिली पर्सन ने उनसे बात की. तो सबसे ताकतवर चीज अभी क्या है भगवान के बाद? करप्शन. तो उन्होंने वो पुलिस ऑफिसर को थोड़ा बहुत करप्शन दिया. उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया करप्शन को, और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई इतने का वह है, हम 10%, दैट इज 3.5 lakhs आपको दे देंगे. तो पुलिस वाले ने वो 3.5 lakhs का करप्शन एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने उनको कभी भी परेशान नहीं किया. स्टोरी कंप्लीट. आई होप वी आर अवेयर. मतलब आप सब फेक था. देयर वाज नो पुलिस पर्सन. वो जो राज था वही पुलिस पर्सन था. दैट इज सेम टीम. देयर वाज नो राज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल का जो भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें 2-3 बार स्पेशली वेरीफाई करने के बाद ही we should move ahead. See loan scams and CIBIL manipulation. Are we aware about this loan apps जो हमें मिलते हैं, वो हमारे एक्सेस ले लेते हैं? अगर आप कहोगे कि आप अवेयर हो तो मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा. बहुत सारी स्लाइड्स है. प्रैक्टिकली लोन एप्स, देयर आर लोन एप्स के जो आपको 500 रुपए से लेके लाख 1.5 लाख रुपए तक के लोन्स देंगे तुरंत ऑनलाइन. तो आपको क्या करना होता है कि आपको वो ऐप इंस्टॉल करने होते हैं. दे विल टेक योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर बायोमेट्रिक्स, और उसके बाद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नॉट लीगल एज पर द नोटिफिकेशंस ऑफ RBI, उसके बेसिस ऊपर वो उनको मतलब उसको ओवर क्रॉस करके वो इन्हें लोन देंगे विथ टू हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बट शॉर्ट टर्म लोन्स. अब जब ये जो लोग हैं जो लोन ले रहे हैं वो उनको पैसे दे भी देंगे, then also they will keep demanding. क्यों? Because they have taken access of their Aadhaar card, PAN card, photos, contacts. अब आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर कॉल्स आए होंगे ऐसे किसी लोगों के नाम के वसूली के लिए जिनके फोन में आपका नंबर है, आपके फोन में उनका नंबर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो दिस इज द थिंग. उन्होंने ऑनलाइन लोन से ये ही वुड बी विक्टिम ऑफ दिस थिंग. अब ये लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आपके इमेज के को मैनिपुलेट करेंगे, आपका फोटो जो है उसे
थोड़ा वल्गर पोजीशन में बना के दे विल मेक अ ग्रुप, और उसमें आपके जितने भी कॉन्टेक्ट पीपल हो उन सबको ऐड करेंगे। हर तरह से वो लोग आपको डराएंगे और आपसे पैसे मांगते ही रहेंगे। तो अगर आप ऐसे केसेस में विक्टिम हो गए हो तो कॉल 1930 जो सेंट्रल साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर है। डिलीट द ऐप, फोन को फॉर्मेट करिए, इसको अपडेट करिए आपके वर्जन को, एंड अवॉइड दिस अननोन कॉल्स, उसको ब्लॉक कर दीजिए। दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। नेवर पे मनी टू देम, अदरवाइज उन्हें वो कॉन्फिडेंस आता ही रहेगा। सो बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। एक और चीज है विच इज सिबिल स्कोर मैनिपुलेशन। प्रैक्टिकली देयर आर सो मेनी पीपल कि जिनको शायद, आई होप यहाँ से भी कुछ लोग होंगे जिनके नाम पे गलत लोन लिया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ? अच्छा, किन किन लोगों ने लोन लिया है? सबने लिया है। अब जो लोन जब कोई लेता है, शायद कोई थर्ड पार्टी के थ्रू, अगर बहुत प्रॉपर जो बैंक हो या उनके थ्रू नहीं लिया हो, तो क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट हो सकती है। अब एक बात है, वन इज योर जीएसटी नंबर, इज इट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? जीएसटी। अब उसके आगे पीछे के नंबर हम निकाल दे तो क्या हुआ? पान नंबर। तो इनका नाम अनिल जैन है, मेरा भी नाम अनिल जैन है। मैंने क्या किया, लोन लिया, इनका जीएसटी नंबर मेरे पास है, नंबर्स थोड़े हटा के ऊपर नीचे करके आई टुक हिज पान कार्ड, आई गेव माई आधार कार्ड। दोनों अनिल जैन है। हम सब एक अच्छे ही दिखते हैं हमारे आधार कार्ड पान कार्ड में, और सिमिलर ही दिखते हैं या अलग ही दिखते हैं, तो इट इज एक्सेप्टेड। तो दिस इज अ ग्लिच। अब मैंने लोन लिया, मैंने चुकाया, नहीं चुकाया, सिबिल इनका बिगड़ेगा, मेरा नहीं। सो दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग। तो सिबिल स्कोर मैनिपुलेशन। बट अगर आपने लोन नहीं लिया और आपके नाम का फेक लोन है तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। इफ यू आर विक्टिम टू इट, डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन आ सकता है। यू जस्ट नीड टू फाइट बैक लीगली, बिकॉज आपने लिया नहीं है, एंड बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद दैट पर्सन, द पर्सन हु इज गिविंग द लोन। और जो भी लोन दे रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही नीड्स टू वेरीफाई आधार कार्ड एंड पान कार्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी बिल्कुल हो रही है। क्यूआर कोड स्कैम। सी, क्यूआर कोड, पहली बात है हमारी अभी बात हो गई कि वो कब होता है, जब हम पेमेंट करते हैं। अब क्यूआर कोड, ये तो हमारी बैंकिंग क्यूआर कोड की बात हुई। कोई रेस्टोरेंट में आप जाओ तो वहां भी देयर आर क्यूआर कोड्स फॉर मेनू। सब्जी वाली भी रखते हैं, ऑफ कोर्स, यस सर। तो मैं आपको इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी कहता हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ही इज अ वेरी हाई पोजीशन्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड उनके पास बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बट उनके फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग ऐप है कि वो कॉल रिकॉर्ड करता है। अब उनका एक 11-12 साल का बेटा है। अब अचानक एक दिन उनके पास गिफ्ट आता है उनके किड के लिए, जो एक एजुकेशनल टॉय है। तो वो जो टॉय है उसके ऊपर वो क्यूआर कोड स्कैन करके उनका मैनुअल डाउनलोड करते हैं। देयर आफ्टर वो टॉय जो है वो ऑपरेट करता है। बट ग्रह नक्षत्र की अगर हम बात करें तो देयर वाज समथिंग लाइक दैट कि वो दिन से ये जो व्यक्ति है ऑफिसर, ही वाज आल्सो नॉन करप्टेड, बट उनकी इमेज डाउन होने लगी। अब क्या हुआ, वो जो क्यूआर कोड था वो डेवलप किया गया था, इट वाज अ थर्ड पार्टी क्यूआर कोड। वो गेम जो है, हार्ड गेम, दैट इज हार्डवेयर, उसके साथ वो सॉफ्ट चीज करके, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, दैट वो जो ऐप है क्यूआर कोड के थ्रू, इट वाज अ थर्ड पार्टी ऐप जो उनके फोन में स्पाई की तरह वर्क करने लगा। फादर ने वो क्यूआर कोड स्कैन किया फॉर हिज सन, गेम एजुकेशनल टॉय था इसलिए, एंड वो क्यूआर कोड ने एक्सेस ले लिया उसके फोन का, दैट द लिंक, बिकॉज क्यूआर कोड इज नथिंग बट हाइपरलिंक्स, वेब लिंक्स। सो उसके लिए
There are two websites. One is virustotal.com and one is abuseibdb.com. जहां आप कोई भी वेब लिंक्स वेरीफाई कर सकते हो, QR कोड को स्कैन कर सकते हो एंड यू कैन वेरीफाई कि ये जेन्युइन है या नहीं है. सो दिस आर द थिंग्स. और वो जो ऑफिसर था, ही वॉज इनटू दिस कॉल रिकॉर्डिंग थिंग, तो उनके सारे कॉल्स वो रिकॉर्ड करता था. सो ये जो व्यक्ति है वो उनके कॉल को सुन भी सका, उनके फोन का भी पूरा एक्सेस मिल गया. सो फिर वो सारी जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिली, ही स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग इट. अच्छा, ये भी एक चीज है कि एक फोन कॉल आया और फोन हैक हो गया. सी व्हाट इज द थिंग इन इट कि हमारे जो मित्र है विक्रांत, उनको कॉल जाता है कि समवन हैज अरेंज प्रॉपर सेमिनार और इवन स्नेहल सर इज जॉइनिंग हिम. अब वो जो ऑर्गेनाइजर है, ही टेल्स हिम दैट इवन आई एम जॉइनिंग हिम विथ माय न्यू नंबर. तो वो कॉल, हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल, हम तीन बात कर लेंगे. तो वो करेगा कि नहीं करेगा एक्सेप्ट? बट ऑब्वियस है. तो कॉन्फ्रेंस कॉल में वो ज्वाइन कर देता है क्योंकि उनके ऊपर वो कॉल आ रहा था जो मेरे न्यू नंबर से आ रहा था. अब जैसे ही उन्होंने उसको ज्वाइन किया तो हिज फोन गॉट लाइक, उसका अकाउंट खाली हो गया. कैसे? एनीवन? क्लोनिंग नहीं, उन्होंने कॉल ही मर्ज किया है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया, कोई लिंक वो नहीं किया, कुछ नहीं. यस अभी पहले एसएमएस पे तो था ही, बहुत पहले से ये सिस्टम अवेलेबल है, बट आप कॉल पे भी ओटीपी मंगवा सकते हो. इसमें कुछ नया नहीं किया. वो व्यक्ति ने साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के साथ खेला कि दैट पर्सन इज कॉलिंग, और वो उनका नया नंबर है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर दीजिए. और जैसे ही आपने कॉल को मर्ज किया, ओटीपी वो बोलने लगा एंड दैट पर्सन वाज रेडी. जैसे ही ओटीपी बोला, कर दिया. आपको समझने में टाइम लगेगा, बट तब तक वो ओटीपी उसने करके आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बैंक अकाउंट खाली कर दिया. इवन व्हाट्सएप पे भी कॉल्स आते हैं, ओटीपी कॉल्स. सो दिस इज अ वेरी मच रियलिटी नाउअडेज. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है? आप उनको ही कहिए कि आप ही उनको कॉल करके यू कैन टेक अस, आप कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दीजिए. एटलीस्ट किसी अननोन व्यक्ति के सजेशन पे आप कॉन्फ्रेंस कॉल, इनकमिंग कॉन्फ्रेंस कॉल मत लीजिए. यू कैन सजेस्ट हिम दैट आप उनको कॉल करिए एंड यू टेक हिम इन कॉन्फ्रेंस. उतना आप कर सकते हो. सो दिस आर द थिंग्स के ये सारे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस है जो हो रहे हैं. ये हमारे सूरत का केस है कि जब एक जेंटलमैन, they were watching TV, so television was also watching them. So practically this was a smart television. ये हमारी जो मैटर थी वो राज्यसभा तक गई थी. And practically what was the scenario कि that smart TV was having inbuilt webcam. और उसके बेस पे कोई लिंक के थ्रू उन्होंने कोई मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स की मूवीज के स्टोर से. बट प्रैक्टिकली वो हैकर ने, because smart television is also a computer and it was additionally having a webcam, that is inbuilt webcam. तो उसके थ्रू जब भी वो टेलीविजन देखते तो वो टेलीविजन भी उनको देखता. एंड बहुत ज़्यादा हुआ था बिकॉज वो टेलीविजन उनके बेडरूम में था. फिर बहुत सारी क्लिप्स वायरल हुई और धीरे 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 वो व्यक्ति, वो केस फेमस हो गया. अभी वो व्यक्ति फेमस नहीं हुआ है. सो this was the thing. तो सेफ्टी के लिए it is important कि it is also computer, we should understand. For spying feature, जब भी कोई आप टेलीविजन लो, स्मार्ट टेलीविजन, मेक श्योर कि उसके अंदर इनबिल्ट वेबकैम नहीं है. वो वेबकैम आप अटैच कर सकते हो एडिशनली टेलीविजन के साथ, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ वेब कॉल. और जब भी आपका काम खत्म हो जाए, यू डिसकनेक्टेड. और कभी भी आप कहीं जाओ किसी होटल्स में, तो मेक श्योर कि यू हैव हिडन कैमरा डिटेक्टर्स. और अगर वहाँ टेलीविजन हो
तो विथ इनबिल्ट वेबकैम हो तो उसके ऊपर ब्लैक ओपेक जो टेप है उसके थ्रू उसे उसके कैमरे के पोर्शन को आप बंद कर दीजिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो अभी हो रहे हैं. इसमें मैं इनको कॉल करता हूं और मैं इनको कहता हूं कि मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया है कि जो शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है. अब मैं कोई ऐप इनके अंदर डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, तो मैंने कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो पूरे शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है. अब मैं इनको सिर्फ इतना कहता हूं कि एक काम कीजिए, कल टीसीएस गिरेगा, आप ले लीजिए, कि आप बेच दीजिए. आपने बेचा, टीसीएस गिरा, आपने और रीजनेबली उसको लिया. फिर मैंने उनको दूसरे दिन ये टिप दिया कि अभी आप काम करिए कि बलरामपुर चीनी का प्राइस ऊपर जाएगा, देख लीजिए आपको क्या करना है. आपने चेक किया, ओपन मार्केट में बलरामपुर चीनी का प्राइस ऊपर गया. फिर मैंने उनको कहा कि अभी एक काम करिए, धामपुर शुगर को बेच दीजिए, वो गिरेगा. उन्होंने बेचा और वो वाकई में गिरा. अब वो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली मैं 3 बार भगवान बन चुका हूं उनके साथ. तो फिर मैं कहूंगा कि सी दिस इज नॉट अ फ्री सर्विस, इट इज अ पेड सर्विस. और आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर वो ऐप जो होगा वो फेक होगा. वो तो आपको पता होगा ना इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के, वो ऐप उनको जो भी दिखाएगा फिर दैट वुड बी फेक. मतलब वो आप उनको लगेगा कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, बट वो पैसा आएगा मेरे पास और उसमें उनका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा. लो सर्किट वाले शेयर वो बेच सकते हैं, हाई सर्किट के शेयर खरीद सकते हैं, कैपिटल गेन्स ये वो हर चीज हो पाएगी और उनका पोर्टफोलियो बहुत बढ़ेगा. लेकिन अगर वो पैसा विड्रॉ करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी फेक. बट किसी को ये क्वेश्चन है कि वो 3 बार में भगवान कैसे बना? वो हाँ एआई, बट इट इज अ गुड ऑप्शन. अगर वो एआई में भी ये फैसिलिटी हो तो व्हाई नॉट? क्या लगता है आपको? मैं 3 बार, क्या वो चार्ट अगर मैं सच में इतना अच्छा पढ़ सकता हूं तो फिर मैं क्यों उनको फेक ऐप दूं? मैं सच में क्यों नहीं करूं ये? तो वो 3 बार मैं जो ओपन मार्केट में मैंने प्रिडिक्ट किया वो क्या था? कोई गैस? एनीथिंग? चलो कोई मैथमेटिशियन है यहां? मैथ्स किसी ने किया हो? अच्छा 10th तक तो मैथ्स है ना. प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे काम आएगा इसमें वो देखिए. हम कितने लोग हैं? फॉर एग्जाम्पल वी आर 40 पीपल हियर. 20 को मैं कहूंगा बलरामपुर चीनी बढ़ेगा, 20 को मैं कहूंगा बलरामपुर चीनी घटेगा. बलरामपुर चीनी बढ़ा, ये 20 गए, उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आपको है. उसमें से 10 को मैं कहूंगा धामपुर शुगर बढ़ेगा, 10 को कहूंगा घटेगा, वो 10 निकल गए. बाकी के अब जो 10 है उनमें से 5 को मैं कहूंगा कि ये जो शेयर है वो कल बढ़ेगा, विच इज टीसीएस, और 10 को कहूंगा घटेगा. तो एंड में वो जो 5 लोग बचे हैं तो वो तो मुझ पे ब्लाइंड फेड करेंगे. उनसे मैं एटलीस्ट 2-3 करोड़ तो ले सकता हूं इस ऐप के थ्रू. दिस इज इन्वेस्टमेंट स्कैम. तो कल उठ के आपको रियल टिप मिले, डोंट ट्रस्ट. कोई एल्गोरिदम नहीं बना अभी तक. सो दिस इज इन्वेस्टमेंट स्कैम. अभी क्लियर? अभी एक और मैं आपको स्कैम कहता हूं कि आपका कॉल, जैसे कि मेरा कॉल है, अभी मेरा फोन साइलेंट पे है, तो मेरे फोन पे अभी किसी ने फोन किया, मैंने फोन उठाया, नहीं उठाया. मैं मेरा एग्जांपल ही दूंगा, किसी और का फोन है वो बंद है, उन्होंने नहीं उठाया, ठीक है. फिर उनका अकाउंट हैक हो गया, मतलब उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया. ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि
किसी का फोन जो मुझे पता है कि अभी बंद है और मैंने स्विच ऑफ भी हो सकता है, और मैंने उनको कॉल किया, या फिर साइलेंट है, कहीं वर्क इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, सेमिनार्स दे रहे हैं, और उस पर मैंने कॉल किया या उस पर कोई कॉल आया, उन्होंने रिसीव नहीं किया और उनका फोन हैक हो गया। फोन नहीं हैक हुआ बट बैंक अकाउंट में से कुछ मनी चला गया। अब वो भी हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ? मैं सब लॉजिकल बात कहूंगा। आई होप कंप्यूटर डिपार्टमेंट के भी लोग हैं यहाँ, तो कहीं भी मैं अगर लॉजिकली गलत हूं प्लीज लेट मी नो। अब ऐसा कैसे हुआ? कॉल मर्जिंग तो आपने सुना, वो भी लॉजिकल है ना? कॉल मर्जिंग इज लॉजिकल, वेरी मच पॉसिबल। मिस्टर शालीभद्र, ही इज हैविंग माई फोन। अब मैं जब लेक्चर दे रहा हूं, व्हाट ही डज, उन्होंने कुछ कोड्स डायल किए, वॉइस मेल, उसका पासवर्ड सेट किया, किसी और ने मुझ पे ओटीपी कॉल किया, फोन उठाया नहीं, गया वॉइसमेल पे, मैं वॉइसमेल का पासवर्ड इनको पता है, इन्होंने उनको दे दिया, उसने ओटीपी ले लिया, स्टोरी कंप्लीट। हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये तो बहुत इजी बात है फोन उठाने का, लेकिन हाँ, अभी ही मैंने एक वन जेंटलमैन रिक्वेस्टेड मी कि मैं सॉल्यूशन भी आपको कहूँ, तो इसमें ऑफ कोर्स द सॉल्यूशन इज कि आप जाइए आपके सेटिंग में, कॉल सेटिंग में, वहाँ वॉइसमेल है, आप देख लीजिए कि आपके वॉइसमेल में कुछ ऐड किया गया है या नहीं। वो नंबर्स ही होते हैं, तो कॉल सेटिंग में जाके आपके 2 सिम हो तो 2 अलग अलग वॉइसमेल होंगे दोनों सिम के लिए, तो वहां जाके आप देखिए वॉइसमेल का क्या सेट होता है क्या नहीं। तीसरा भी एक और चीज मैं आपको कह देता हूं, फिर थोड़ा एआई वाली बात करके विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर। कितना टाइम बचा है इस बार? टाइम ठीक है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कहूंगा कि आपका फोन किसी ने लिया, कॉल किया और फोन आपका हैक हो गया, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज फोन के अंदर सिम कार्ड में आप काफी नंबर्स आप डायल कर सकते हो, तो उसके लिए यू कैन ट्राई दिस थिंग, *#62# कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक एंड SMS फॉरवर्डिंग टेक्निक, कि आपका OTP कहीं और चला गया, तो ये सारी चीजें भी होती है, सो यू कैन गो फॉर दिस थिंग। आप देख सकते हो *#62#, तो उसमें अगर ये करके आप डायल करोगे तो अगर आपका कॉल या SMS या कुछ भी फॉरवर्ड हुआ होगा, देन यू वुड बी एबल टू नो अबाउट इट। नाउ दिस डेबिट फ्रीज थिंग, कि भाई अगर आपके अकाउंट में कहीं और से पैसा आया हो जिसमें साइबर क्राइम का मनी इन्वॉल्व हो, तो वो आदमी जिस साइबर सेल में कंप्लेंट करेगा वो व्यक्ति वो सारे अकाउंट को फ्रीज करेगा। सो दिस इज अ होल डिफरेंट टॉपिक जिसमें मैं अभी नहीं आऊंगा। विल टॉक अबाउट, थोड़ा बैंकिंग वाला है, बट सी अगर आपके पास कोई बैंक रिलेटेड कोई कुछ इश्यू हो तो विद इन 3 days आप बैंक को कंप्लेंट कर सकते हो एंड द लायबिलिटी वुड बी टेकन बाय बैंक। बट देयर इज अ कैच कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गलती हो तो आप लायबल हो। हाँ जी, हाँ, मतलब आपकी कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए, मतलब कि आपने कोई ऐप को डाउनलोड कर दिया, कुछ ये कर दिया, वो कर दिया। सिमिलरली एक और बात है कि इस सब चीज के साथ अगर आपकी गलती नहीं भी हो, देन ऑल्सो यू कैन डायल 1930 का नंबर और यू कैन गिव देम द डिटेल्स। तो वो जो भी अभी हमने बात की थी डेबिट फ्रीज की, तो वो जो भी अकाउंट है वो साइबर सेल वाले डेबिट फ्रीज कर देंगे। वो बैंक वाली चीज अलग हो गई एंड साइबर सेल वाली चीज दोनों अलग हो गई। तो बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आपकी गलती नहीं है और बैंक का कुछ गलती नहीं और देयर इज अ नेग्लिजेंस बाय बैंक,
then also bank is liable. और अगर ऐसी कोई बात है कि सिस्टम में ग्लिच है, neither you are there is no fault on your part nor in the part of bank, then also bank is liable if it is done within 3 days. अगर 3 से 7 के बीच में हो तो up to 25,000 you have to bear, और 7 days से ज़्यादा हो then it will depend on bank's board approved policy. चलो then RBI में you can even complain. There is a option which is RBI Ombudsman, तो आप बैंकिंग के बारे में कंप्लेन करना हो तो आप कर सकते हो. Now talking about IoT, we are aware what is Internet of Things. तो ये सिनेरियो अभी हो ही रहा है, अभी ये कोई पास नहीं है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वाया इंटरनेट और सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है. इट इज़ कार आपकी 180 की स्पीड पे चल रही है और अचानक आपका वो जो एयर बलून है वो पॉपअप हो जाता है या ब्रेक लग जाती है अचानक. साइबर मर्डर, इट इज़ लाइक वेरी मच पॉसिबल. हॉस्पिटल के डेटाज मैनिपुलेट होते हैं. तो दिस आर नोन टू बी ओनियन लेयर्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट. अब सी द वीडियोज विच वी आर टॉकिंग, तो ये सारे AI जनरेटेड है. अब प्रैक्टिकली डीप फेक्स हमें पता है थोड़ा बहुत, तो इवन वॉइस क्लोनिंग थिंग, इसमें बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं. फादर सन का पैकेज, वो सन को फोन करता है, उसके वॉइस को क्लोन करता है, फिर फादर को फोन करता है, सन को बिजी रखता है और फादर को कहता है कि आपका सन के साथ ये वो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, एंड सन विल टॉक बिकॉज उनका वॉइस क्लोन हो जाता है. सो ऑल दिस इज द रियलिटी. अभी आई होप आप लोगों में से किसी ने या किसी के पहचान वालों ने ये फेस किया होगा. कहीं कहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सन भी नहीं है और उनके सन को गिरफ्तार किया है. तो ऐसी भी चीजें होती है, वो उनसे गलतियां हो जाती है. अब ऑडिशंस, फेसबुक पे जिनको एक्टर्स बनने का शौक है, तो व्हाट दे डू, वो ग्रीन पर्दा या ब्लैक बैकग्राउंड उसके ऊपर दे विल गिव ऑडिशन. अब उनके बेसिस पे वो उनके पूरा पिक्चर वो लोग चेंज कर देंगे विथ AI एंड दे विल स्टार्ट ब्लैकमेलिंग दिस पीपल. उनको लगेगा कि ये मूवी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, बट कुछ और ही होगा. अब ये गर्ल को आपने देखा, शी इज अर्निंग लाइक $11,000 पर मंथ. उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है और बहुत सारी ब्रांड्स को शी इज अ इन्फ्लुएंसर, सो शी इज प्रमोटिंग. एंड व्हाट नेक्स्ट, शी इज नॉट अ ह्यूमन. तो 700 करोड़ AI फेसेस हैं, उनके बाकायदा कॉम्पिटिशंस होते हैं. और अब जो हम आ रहे हैं एक स्टेट पे, इट इज अबाउट मेटावर्स. सी व्हाट इज मेटावर्स. आपने गेम्स खेली होंगी, GTA 5, अभी नेक्स्ट वर्जन उसका आएगा, वेरी वंडरफुल गेम. सोशल मीडिया हम सब यूज कर रहे हैं. तो अभी ये दिन में टाइम नहीं है, ये वर्क चल रहा है. अभी हमारे मार्क भैया जो है, ही इज वर्किंग ऑन इट. नाउ द थिंग इज दैट वी आर हैविंग दिस VR ग्लासेस, PlayStation 5, इट्स वेरी मच अवेलेबल. तो अभी ये इतना रियल होने वाला है कि ये जो VR ग्लासेस है, जिसको हम प्रैक्टिकली मेटावर्स भी कहते हैं, तो उसे आप पहन के यू वुड बी एबल टू कनेक्ट ईच अदर लाइक सोशल मीडिया वेबसाइट्स में. अभी हमारे पास टाइम नहीं है सोशल मीडिया जो हम खाली मोबाइल में देख रहे हैं, फिर आप वहां पहुंच जाओगे. यू वुड बी एबल टू पर्सनली, आप कहीं एक जगह बैठे होंगे, यू वुड बी वेयरिंग योर VR ग्लासेस, बट यू कैन हैव द सेंसेस, यू कैन हैव द स्मेल, यू कैन फील द एक्सप्रेशन, प्रेशर, एवरीथिंग. ये चीज पे वर्क चल रहा है. अब इतना ही नहीं, बट यू कैन इवन वर्क देयर, और वहां एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो जाएगा जो होगा पूरा मेटावर्स में, और ये बहुत जल्दी होगा. अब आपको तो पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है और आप अंदर होंगे. सो दिस इज अ रियलिटी जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको दिखेगी. अब आई गेस मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो फिर मैं और स्ट्रेच नहीं करूंगा. ऑफ कोर्स वी कैन बाय द लैंड, नॉट ओनली द लैंड,
बट वी कैन बाई कार्स, वी कैन बाई क्लोथ्स, वो हम ही होंगे, बट द बेस्ट वर्जन ऑफ अवर सेल्फ वुड बी देयर, और वर्स्ट वर्जन वो होगा जो वो पहन के बैठा है। और अभी ये सब चल रहा है मेटावर्स में। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। Sorry, I have to conclude my session here. See, these are the places कि जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे बॉडी में आ सकते हैं, और देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स जो हैकर्स कर सकता है। इंसुलिन पंप हो, पेसमेकर हो, या एनीथिंग टू हैव अ साइबर मर्डर। So I will conclude the session here. If there is any question, please feel free to ask. See, the thing is that Hello. okay, please. See, there are practically many judgments, sir. I am a cyber lawyer, so मैं बहुत सारे judgment, आप मुझे पूरा elaborate करके कहोगे, then I will be very specific. Otherwise, I can tell you that there are lots of things which are happening nowadays. Practically, we are at present in a state that people are still unaware. मतलब बैंकिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो जो भी क्लाइंट्स है उन्हें अभी पता ही नहीं है। प्रैक्टिकली साइबर लॉज की भी अगर हम बात करें तो लोगों को एक ही सेक्शन पता है कि वो जो क्रिमिनल कोर्ट्स है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता है, दे आर नॉट अवेयर दैट देयर इज अ पैरेलल थिंग विच इज अवेलेबल विच आर नोन टू बी एजुकेटिंग ऑफिसर्स जो मंत्रालय में बैठे हैं। वो सिविल रेमेडीज उनको देते हैं, कंपनसेशन। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसके बेस पे अगर आप जो बैंक की बात कर रहे हो तो बैंक के ज्यादातर केसेस में द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बैंक। और फॉर एग्जांपल इट इज अ डिबेटेबल थिंग, लेकिन मैं बाद में आऊंगा तो आप वो मुझे केस के थ्रू पूछिएगा। बट प्रैक्टिकली दो चीजें होती है, एक है ओटीपी तो एक है पासवर्ड। तो वो पासवर्ड उसके पास कहां से गया, that is also a question. So it is very circumstantial, it is based on evidence क्या है क्या नहीं, but practically bank should be very much aware, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी नोटिफिकेशन है उनका कंपाइलेशन उन्हें करना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट प्रेजेंट ये सिचुएशन आ ही गई है, पीपल आर बीइंग मच अवेयर अबाउट देयर राइट्स। मतलब what is the reality? See, practically the thing is that कि ज्यादातर आप ही अभी क्या हो रहा है कि जो भी क्लाइंट्स है ना वही बैंक को जाके सब बोल देते हैं। लाइक दे से कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो वहीं से बैंक को पता चल जाता है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, क्योंकि हम मल्टीपल लोग हैं यहाँ, बट प्रैक्टिकली ये हमारी ही गलती है कि हम ही जाके कहते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, तो वहां से पता चलेगा कि डेटा लीक होता है। सो दिस इज द थिंग। और अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी आ चुका है, 2 साल हो गए प्रेसिडेंट के असेंट मिले हुए। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड्स अभी बन रहे हैं, बट इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज आपको पता है सबसे बड़ी पेनल्टी क्या है डेटा प्रोटेक्शन में? What is the maximum amount of penalty? 250 crore rupees for data breaches. So, और ये एक्ट आ चुका है, data breaches. It is a penalty. This is a catch. This is a catch. अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डेटा फॉल्ट हुआ तो वो आपको एज ए कंपनसेशन नहीं मिल रहा, वो पेनल्टी है, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही मिलेगा। इट इज अ पेनल्टी। This is the catch. सर हो गया है 100% सर, बट यू कैन मैप योर आधार, यू कैन मैप योर आधार।
वो नहीं दिखेंगे। सर मास्क आधार बट हम सबके आधार ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गए, अब इसमें क्या बोलूं मैं। Yes, any more questions? Generally ये जब some cyber thing happen like video का आप बोले videos are compromised or whatever, then you are in a trap. और जैसे आपने वो इसका बताया, तो वो जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो what should be our approach? नहीं सर, सबसे पहले तो 1930 यू आर सपोज टू कॉल ऑन 1930। अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल स्कैम्स ऑलरेडी हो गया, देन व्हाट यू डू, आप 1930 पे कॉल करके सारी डिटेल्स उनको दे दीजिए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर डिटेल व्हाट दे विल डू, दैट दे विल स्टार्ट फ्रीजिंग द अकाउंट, द रिलेटेड अकाउंट को वो फ्रीज करेंगे, तो वो उस पर लियन भी हो जाएगा, अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपको देगा, तो आपको आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाना है अप टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स, उससे ज़्यादा लॉस हो देन साइबर सेल जिसका ज्यूरिडिक्शन हो, वहाँ जाके यू नीड टू गिव योर स्टेटमेंट। फिर एक कोर्ट ऑर्डर होता है, वो कोर्ट ऑर्डर भी आपको पुलिस ही हेल्पफुल होंगी लेने में, और वो तुरंत ही मिल जाएगा पहली ही हियरिंग में, बिकॉज मुद्दा माल शायद आपने सुना होगा, तो वो मुद्दा माल छुड़ाने का ऑर्डर है। इट्स नथिंग लाइक हाईटेक साइबर क्राइम ऑर्डर का थिंग। सो मुद्दा माल छुड़ाने का ऑर्डर होता है, वो लियन अमाउंट आपके पास लेने का, और उसके बेसिस पे देन दे विल सेंड दिस डिटेल्स टू बैंक, एंड देन बिकॉज द ऑर्डर इज देयर, देन बैंक हैज टू कंप्लाई। तो वो पैसा जो है जो बैंक ने लियन किया था, वो विक्टिम के अकाउंट में वापस वो कर देंगे आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर ऑर्डर एंड एन एफिडेविट, कि अगर किसी और ने वो पैसा क्लेम किया तो वो व्यक्ति उनको वापस देगा, वो एक एफिडेविट भी बॉन्ड्स वो लेंगे। और इन सब के साथ देयर इज वन मोर प्लेस विच इज नोन टू बी sanchar-sathi.gov.in। बहुत लोगों के साथ क्राइम नहीं हुआ, फिर भी अगर उन्हें ऐसा लगे कि कुछ चीज उनको नोटिस में लाना है, देन दे कैन कंप्लेन ऑन sanchar-sathi.gov.in। yes, that is for the bank thing। उसमें आपको ज्यादा लड़ना होगा, बिकॉज के यू नीड प्रॉपर एविडेंस, और देयर आर सर्टेन ग्लिचेस जो अभी कस्टमर्स को उतना पता नहीं है, तो शायद धीरे धीरे वो लोगों को पता हो चलने लगेगा, और फिर बैंक के लिए लायबिलिटी के कंसर्न्स आएंगे। तो वो ये प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं कह रहा हूँ, बट दैट्स फाइन। सर एक्चुअली देखिए, रैंसमवेयर तो ऐसी चीज हो गई कि उसके सॉल्यूशन में अगर आप रैंसम नहीं देते, हाँ रैंसमवेयर की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर वो रैंसम नहीं देते तो कॉस्ट ऑफ गेटिंग बैक डेटा वो उससे ज्यादा हो सकता है अगर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हो, और अगर आप रैंसम देते हो तो देयर इज नो गारंटी कि आपको आपका डेटा मिलेगा। तो द थिंग इज दैट इसका रैंसम वेयर अटैक तभी होता है जब यू अंडरस्टैंड, हाँ अब आपने वो यूज किया है, कुछ चीजें ऐसी है जो हमने किया है, रैंसम वेयर अटैक को इनवाइट किया है हमने शॉर्ट में कि हमने इनवाइट किया है, तो हम इतना ही करें दैट वी शुड बैकअप आवर डेटा इन अ पोर्टेबल डिवाइस, बिकॉज ऑलरेडी आपके वहां ग्लिच आ गया है, और अगर आप अभी तक के जो रैंसमवेयर के एक्सपीरियंसेस हुए तो वो पैसे दे के उन्होंने डेटा दिया है, बट इट इज नॉट सजेस्टेड टू गिव देम रैंसम। हाँ अगर आप पैसे उनको दे रहे हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कौन से मोड से आप उनको पेमेंट दे रहे हो। अगर आप क्रिप्टो एसेट से दे रहे हो, वो क्रिप्टो एसेट से ही मांगेंगे, तो क्रिप्टो एसेट को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज पीयर टू पीयर।
So this is the thing. But then also you can complain on 1930. अगर आपने पैसे दिए हैं, पैसे दे के अगर आप वो कर दो एक बार, तो अभी there are some technologies जो इवन बिटकॉइन को एनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो इसमें प्रोग्रेस हुआ है. बट चीज इसमें यही है कि आप रैंसम अटैक्स को इनवाइट मत करो एंड हैव अ बैकअप रेगुलरली इन अ पोर्टेबल डिवाइस. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वजीर एक्स ने करवाया हो. हाउ कैन यू ट्रस्ट? इस्क्रो अकाउंट्स, ओके. हाँ सर, इस सब में मत पढ़िए. इट इज काइंड ऑफ थर्ड प्लेस कि जहां आपके अलग से ही अकाउंट आ गए. इसमें डोंट गेट इनटू दिस इस्क्रो अकाउंट. नहीं नहीं, वो तो फ्रॉड होने के बाद के 3 दिन की बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ. तो यू हैव द एविडेंस ना, आपके पास चालान है ना. मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि ये कार्ड किसी ने किसी और के कार्ड से आपको वो दिया. हाँ, तो वो जिसके कार्ड से आपको देगा उसी के नाम का बिल बनाओगे ना. वो डिलीवरी एड्रेस, बिल तो किसके नाम का बनेगा? नहीं सर, तो उसमें तो इट इज वेरी वेरी ग्लिची थिंग. हाँ प्लीज. उनका क्वेश्चन कुछ और ही है. मुझे पेन ड्राइव. बट ये 3 दिन आप किस चीज के 3 दिन पकड़ के बैठे हो? मैं तो बैंक की बात कर रहा हूँ. आपको बैंक को लायबल करना है, उसके 3 दिन है. ये तो आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन है. तो व्हाई, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डेज? मुझे क्वेश्चन इनका नहीं समझ में आया. हाँ हाँ हाँ. इनके कार्ड से इसने ऑर्डर किया और माल मैंने भेज दिया, जो ऑर्डर थे इसको भेज दिया. बराबर है. कार्ड इनका, माल ये लेके गायब हो गया. माल ये लेके गायब हो गया. ओके ओके. ये तो चला गया. हाँ. कार्ड इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया. हाँ. बराबर है. अभी इनको ध्यान में आता जब तक तो माल पहुंच गया, कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो बंदा निकल गया. हाँ. अभी ये जाते हैं बैंक के पास, अरे मेरा कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया. हाँ. मेरे को तो वो बैंक के पास जाएंगे नहीं, तो वो इनकी गलती है. सुनिए, बैंक के पास अगर वो गए ना, तो बैंक इज नॉट लायबल.
because it is his fault. वो बैंक क्यों कहेगी आपको? नहीं, वो पुलिस स्टेशन पे जाएंगे. वो मैं समझ सकता हूं जो आप कह रहे हो, लेकिन यू हैव योर ओन सेट ऑफ एक्सप्लेनेशन ना, यू हैव द चलान ना. अब फॉर एग्जांपल ये तो मैं किसी और के लिए गिफ्ट ले ही नहीं सकता, ये तो बात ऐसी हो गई. मैंने किसी और का गिफ्ट लिया, वो तो गिफ्ट लेके चला गया, क्या पता मैं उसको जानता हूं नहीं जानता हूं. मैं ऑनलाइन ऑर्डर की ही बात कर रहा हूं सर. ये केस हो तो मैं खुद आपको कह रहा हूं कि नहीं, डिनर टाइम पे हम बात करते हैं. आई विल गिव यू द सजेशन एंड द आंसर. आप कौन हो इसमें से? आप सेलर हो. आपके गुड्स गए, आपके साथ हुआ क्या है अभी? इन शॉर्ट 2 जन ने मिलके आपके साथ फ्रॉड किया है. मैं एक बात आपको कह रहा हूं, आप मुझे नहीं समझ रहे. मैं आपको सर ये कह रहा हूं कि आपको ये प्रूव करना है कि 2 जन ने मिलके आपके साथ फ्रॉड किया. एक जिसने कार्ड यूज किया, एक जो गुड्स लेके गया, एंड यू आर द विक्टिम. आपको ये प्रूव करना है. आप अगर ये एक्सेप्ट कर दोगे कि ये व्यक्ति जिसका कार्ड है वो लेजिटिमेट है और वो जो गुड्स लेके भाग गया, देखिए एवरीथिंग इज सर्कमस्टेंशियल. अगर मैं आपका लॉयर हूं, अगर मैं आपके बिहाफ में बात कर रहा हूं, तो आप भी आप ही के बिहाफ में बात करिए. तो यू हैव टू सी, आप विक्टिम हो और 2 जन ने, एक जिसने कार्ड से पेमेंट किया, एक जो गुड्स लेके चला गया, दोनों का इंटेंशन मालाफाइड है. साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, यू आर द विक्टिम. हाँ, राइट, ओके ओके. 1930 पे आप कॉल करो. दैट इज सेंट्रल साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर. वहां जो एंगल मैंने आपको दिया कि ये दोनों ने मिलके आपके साथ फ्रॉड किया है, एज अ विक्टिम यू नीड टू कंप्लेन, बिकॉज आपके गुड्स गए हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से गए हैं. सो यू कैन यूज द, चलो ठीक है, एक हम यहाँ एड्रेस करेंगे. श्योर भाई. एनी अदर क्वेश्चंस? लेडीज वाला क्वेश्चन है. आफ्टर भाई, let them get the first chance. ओके, हमारे छोटे छोटे स्कैम है, सो लेट अस सॉल्व दैट. हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत बार जो साइट से हम शॉपिंग करते हैं, अगर हमने पे कर दिया पहले, इफ इट इज सीओडी इट इज अ डिफरेंट थिंग. उसमें भी आता है कुछ अलग ही आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. पर बहुत बार ऐसे होता है कि अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया और वो जब माल नहीं आता है, मतलब वी डोंट गेट दैट प्रोडक्ट, और जब हम वापस अगर देखने जाते हैं तो वो साइट भी वहां से गायब हो चुकी रहती है. राइट. तो इन दिस केस व्हाट शुड वी डू? 1930 पे आप कॉल करिए. पर वो साइट ही नहीं मालूम ना हमको. क्या नहीं मालूम है? अब हमने कौन से आपको साइट से किया साइट ये की मालूम जरूरत ही नहीं है है. मैम, आपको साइट की जरूरत नहीं है. हाँ. यू आर जस्ट सपोज टू व्हाट्सएप देम द डिटेल्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन. जो भी एक चीज तो हुई है ना आपके पास, आपका पैसा इधर से उधर गया है, तो वो जो सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है उसकी डिटेल आप या तो स्टेटमेंट से दीजिए या स्क्रीनशॉट से दीजिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लेंट दे विल डायरेक्टली फ्रीज द अकाउंट, और वो अकाउंट फ्रीज होके वो अमाउंट लियन होके
वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा. Done. If it This is an is a online solution. payment. If it is If online. it is COD and you get a different product, and in the same case that site is not nowhere seen, then what should be Same done? thing you can do. Okay. But we don't But at remember that which time, site. हाँ. you would accept that thing. Why? कि भाई एक बार वो पैसा वापस आ गया, we are okay to give the जो भी Product. आपका वो पार्सल है या जो भी वो फेक चीजें है, वो आप उनको वापस देने के लिए रेडी हो. तो just return that thing. Okay. इसके सिवाय अगर आप साइट याद नहीं है तो भी. साइट की जरूरत ही नहीं है. Okay. पेमेंट डिटेल्स आपको चाहिए. बट इसमें मेन चीज है कि अगर आप Can we all listen, please? Can we all listen? अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाना है, उसमें अब जाने की जरूरत नहीं है, वो पुराना हो गया है. लेकिन जाना भी है तो 1915 नंबर है, वो एक और चीज है. बट 1930 इज कंपैरेटिवली अ बेटर ऑप्शन एंड ऑलवेज गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी. अब शायद मेरा डिनर का टाइम हुआ है एंड विक्रांत इज वेरी एंथुसियास्टिक हियर, so he will address the question. Come here, please. Please. He will address you. विक्रांत जी एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो. सर को जाना है तो मैं उनको थैंक्स गिविंग कर देता हूँ ताकि हम आगे की चीज कंटिन्यू कर ले और वो डिनर के लिए. So he is from my team only. Yes. So he will address all your questions here. तो इससे पहले मुझसे कुछ पूछना हो तो I am here for 2-3 minutes. आप प्लीज, एक सर का क्वेश्चन था वो रह गया था. सर को आप विद डिनर भी मुझसे पूछ सकते हो. अरे पूछ लीजिए, चलिए पूछ लीजिए. जस्ट 5-10 मिनट्स. हाँ, उसके बाद देन यू कैन. हाँ, चलिए चलिए प्लीज जल्दी जल्दी. प्लीज जी तो देयर इज अ क्वेश्चन. ओके, एक मिनट. सबसे पहले मैं एक बोलना चाहूंगा कि अगले 5 से 10 मिनट में सेशन तो खत्म होगा. यहाँ पे एक शॉर्ट मील की व्यवस्था की हुई है अल्पाहार की, तो प्लीज किसी ने जाना नहीं है क्योंकि हर टाइम की तरह हम बोलते हैं खाना वेस्ट जाता है, तो प्लीज सभी ने इसका आनंद लेके जाना है. एक 5 से 10 मिनट में सेशन खत्म होगा. सर हम आईटी एक्ट 2000 के अंडर क्या मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट्स कुछ प्रोविजंस है क्या आईटी एक्ट 2000? हाँ हाँ बिल्कुल. और हमारा जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, दैट इज वो जो पुराना वाला है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है. उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं जिसमें ई ट्रांजैक्शंस आ चुके हैं, ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस आ चुके हैं. और जो साइबर लॉज है इट इज नॉट पर्टेनिंग टिल आईटी एक्ट. आईटी एक्ट जो है वो बेस है. नाउ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ले लीजिए आप, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर लॉज. तो आईटी एक्ट इज अ बेस, बाकी सब आप बिल्कुल कर सकते हो. एक और चीज मैं और 3 मिनट ले रहा हूं आपकी. मुझे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि कुछ चीजें जो फॉर स्टूडेंट्स उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो, ऐसी चीजें मैं खाली फटाफट कह देता हूं, देन आई विल क्विकली बी इन माय शेड्यूल. देखिए सबसे पहले तो साइबर जो स्पेस है, मतलब साइबर क्राइम इज अ बेस जिसमें बहुत सारी फील्ड्स है वो एसोसिएटेड है. वन इज एथिकल हैकिंग. आई डोंट बिलीव इन एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेट बिकॉज कोई आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आप लाइफ टाइम एथिकल रहोगे. बट वही चीज आप एज अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर करो तो इट विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट. So ethical hacker is a practically a person legitimately he takes your written permission and with your permission he hacks into your device कि उसमें से vulnerability find हो. ये एक field है. Second field is cyber crime investigation कि जब भी कोई crime होता है तो आप उसे investigate कैसे करते हो, क्यों और किस तरह से. वो इस तरह से कि जब भी उसका कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ केस वो जाए तो वो वहां स्टैंड करे.
सो दैट इज उसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि कहीं से कोई टूल्स लिए, इन्वेस्टिगेट किया और कह दिया कि ही इज अ क्रिमिनल. नो, यू हैव टू प्रूव इन कोर्ट ऑफ लॉ. दैट पूरा चैनल इज साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन. इट इज ऑल्सो अ गुड फील्ड. देन द बेस्ट फील्ड जो आज के टाइम में है, जिसकी बहुत डिमांड है, साइबर फॉरेंसिक में क्या है कि जब भी आपके कोई गैजेट है वो कॉन्फिस्केट किए जाते हैं, तो उसमें से जो डेटा बाहर निकलता है, वो जो प्रोक्योर करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिया, डेटा ले लिया, एविडेंस में रख दिया. नो, उसका पूरा चैनल है. एज अ डिजिटल एविडेंस उसे एज अ एविडेंस आप पुट करो. उसके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसीजर. कंप्यूटर को थेफ्ट, डैमेज, फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल डैमेज या थेफ्ट से कैसे बचाओ. नाउ एआई, एमएल, machine learning, artificial intelligence are very upcoming field. Similarly, metaverse, वो future, it is a, हम कह सकते हैं कि वही future है. तो ये सारी fields जो है, they are so much into it कि ये fields में आपको अब you can go for it और proper education आप इसमें ले सकते हो future में. And I will wish best of luck to all of you. Thank you. Thank you. और सर, अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस होंगे भी ना, तो आपका नंबर और मेल आईडी मैं इनके साथ शेयर करूंगा. Sure. तो वो आपसे पर्सनली कांटेक्ट भी करेंगे. Sure, sure. तो जीतो अहमदनगर चैप्टर डॉक्टर स्नेहल जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें साइबर क्राइम्स और इसके बारे में जानकारी दी है. और ये भी कहा है कि अगर ऐसी कोई घटना हो, ऑफ कोर्स बड़ी हो तो ही हम उनके पास जाए तो अच्छा है तो उसमें वो हमारी हेल्प भी करेंगे. इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में खास करके प्रणीत जी मनोज जो कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर भी आज का सपोर्ट दिया हुआ है, प्रीतेश जी लुमकड़ इंस्पायर कंप्यूटर्स और अजीत जी बोरा, इन तीनों ने आज के इस इवेंट के लिए हमें स्पॉन्सर किया हुआ है. तो इन सभी को मैं जीतो अहमदनगर चैप्टर की ओर से खूब खूब धन्यवाद करता हूँ. और आज सभी का धन्यवाद कि आप इतना टाइम निकाल के आए और इस इवेंट को, इस सेशन को आपने सुना. थैंक यू. और आप सभी के लिए एक शॉर्ट मेल की प्रोविजन की हुई, तो आप सभी ने इसका आनंद लेना है. इसके अलावा और किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो विक्रांत जी उसके आंसर्स देंगे. बाय दैट टाइम स्नेहल जी डिनर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आगे गाड़ी है, तो उस वजह से हम उन्हें विदा करेंगे. वन थिंग, यस, सॉरी. तो मैं आलोक जी, प्रनिल जी, अजय जी, गौतम जी, हमारे वाइस चेयरमैन अमित जी, हमारे पास्ट चेयरमैन जवाहर जी, मेघना जी, इनको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा. सोनाली जी, वाइस चेयरमैन लेडीज विंग. तो इन सभी डिग्निटरीज को, चेतन जी, हाँ, प्रीतेश जी, प्लीज आप स्टेज पे आइए. अजीत जी, मैं अजीत जी को स्टेज पे बुलाऊंगा. एक छोटा सा फेलिसिटेशन करेंगे और फिर इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे. प्लीज गौतम भैया. Let all come. Thank you. हाँ, I guess. आई गेस अगर हमें Q&A सेशन थोड़ा और चलाना है तो किसी के कुछ क्वेश्चन है, हमारे पास ऑलरेडी एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर है, तो किसी को कुछ सवाल रहेंगे तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं एट द टाइम ऑफ मील.